ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਲੇਖ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਖੇਪ ਚ ਨੇ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਣਾਚਾਰ ਸਿਕਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਫਾਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਰਾਂਸ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਸਟ ਤਾਈਂ ਲੜੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ, ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਭਾੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਤਮਸਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ। ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 10-10,000 ਏਕੜ, 5-5,000, 5-500 ਏਕੜ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪਟੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਟੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੌਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਭੌਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੌਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਪਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਗਾਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂ ਦਾ ਲਗਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੀਮਿਤਤਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਫਰਕਮਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਆ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕਮਾ ਲਗਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਰਕਮਾ ਲਗਾਉਣ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਮੀ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਾਊ ਭੌਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਭਾਅ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਅ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਅ। ਉਤਲਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਸੁਪਰਮਨਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਉਪਜਾਊਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਢੋਹ ਢੁਆਈ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਫਰਕਮੇ ਲਗਾਨ ਨੇ। ਲਗਾਨ ਮਿਥਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਫਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ, ਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਲਗਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕਮਾ ਲਗਾਨ ਹੈ, ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਫਰਕਮਾ ਲਗਾਨ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਰੋਦਨੀਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ % ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਹਰ ਟੁਕੜਾ ਵਾਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥੋ ਉੱਥੋਂ ਭਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਮਿਥੋਗੇ, ਜੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਮਿਥੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਜਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਏ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਂਗੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ 3 ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਵਾਡੋਲ ਅੱਗੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੂਹਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ,
ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੂਣਾਚਾਰ ਸਕਾਈ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਹਿਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਖੁਦ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਆਂਦਾ ਉਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕ ਆਲੋਚਨਾत्मक दृष्टि नाल से विचार किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही नहीं है कि मिडिल स्कूल वाला या प्राइमरी स्कूल वाला या जिन्हें यूनिवर्सिटी की सिक्ख्या ली होवे वही आदमी शिक्षित आदमी हुंदा है, जदों कि ऐसा हर कोई जो किसी विशेष संस्थान में पास नहीं हुआ है शिक्षित आदमी है। मतलब साडे लिए तो यह होंदा ना भी जिन्हें सिक्ख्या ली है, 5वीं पढ़िया 8वीं पढ़िया या कॉलेज पढ़िया भी वो सिक्खक है। की है वो सिक्खक नहीं होंदा जिन्होंने इत्थों किसी तो भी नहीं सिक्ख्या ली है। तो वो कहते हैं शिक्षित आदमी वह आदमी है जिसमें मानव रूप की प्रधानता होती है। लिख लो शिक्षित आदमी कौन होगा, क्योंकि एक उक्तियां ना अपन वार वार कम देनी तो फिर उसको देख लेंगे। शिक्षित आदमी वह आदमी है, सिक्खक आदमी वो आदमी है जिस विच मनुखी रूप की प्रधानता होती है। सो मनुखी रूप है की है, इन अलग अलग बंदे किवें धर्म वाले की आते हैं। आप जानते हैं कि धार्मिक लोग कहा करते हैं कि मनुष्य का सृजन ईश्वर के रूप के अनुसार किया गया, कि उसमें कुछ ना कुछ ईश्वरीय है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ परमात्मा ਦਾ अंश है। हाँ ये धार्मिक बंदे कहते हैं, पर आंदा साडे एक महान साडे एक महान शिक्षक फैरबाग जानते हैं ना, क्योंकि मार्कस के 2 बंधु सी जिन्होंने मार्कस पर बहुत बड़ा असर पाया। लुडविग फैरबाग ते हीगल तो उन्होंने तुहानूं पता ना द्वंद्ववादी विधि ली है, ते फैरबाग तो पदार्थवाद जिन्होंने ने। सो आंदा साडे बहुत बड़े शिक्षक फैरबाग ने कहा है जिन्होंने धार्मिक विचारों का विवेचन वैज्ञानिक दृष्टि से किया। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया कि मानव का सृजन ईश्वर रूप में नहीं बल्कि ईश्वर का सृजन मानव रूप में हुआ है। मतलब आदमी वो कुछ सर्ज लिया रब नूं बंदे ने जिहड़ा कुछ बंदा आप बनना चाहता। सो मानव रूप में ईश्वर का सृजन कैसे हुआ है, मनुखी रूप च ईश्वर का सृजन कैसे हुआ, ये हम ये तो तुहानूं पता लग जाना भी परमात्मा की चीज है। यदि आप या तो यूनान के देवताओं पर गौर करें जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर अनश्वर बुद्धिमान थे, जहाँ ईसाई धर्म द्वारा अपने ईश्वर को दी गई परिभाषाओं पर जब ये कहता है कि उसने ईश्वर या उसका ईश्वर त्रय रूपेश्वर तीन रूपेश्वर अपने भी तीन रूप, ये मतलब क्यों ये लाइना चुनिया गई ने ईसाई धर्म, क्यों मुस्लिम धर्म नहीं आता गया, क्योंकि मुस्लिम धर्म भी ईसाई धर्म चो ही निकले। 2 तरह के धर्म ने ना,
ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਲਿਆ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗੁਨਾਨਕ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਨੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ? ਯੂਨਾਨ 'ਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਨਾ ਪੂਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਨੱਕ ਨਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਈਸ਼ਵਰ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਪਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈ ਧਰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਾਹਰ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਜਨਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸਾਈ ਮਤ ਨੇ, ਅਸਾਈ ਧਰਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈ ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਈਸਵੀ ਸਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਲਗਭਗ 700 ਕੁਛ ਤੋਂ 633 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ 13ਵੀਂ 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਦ ਲੱਭਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਮਤ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਸੁੰਧਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ, ਮਲਤੂਨ, ਇਹਦੇ ਤੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸਰ, ਮੈਂ ਤੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਰੂਪ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੱਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਫਿਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 9ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਮਤ ਹੀ ਆ ਸਕੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਤ ਤੇ ਸੋਹਰਾਵਾਦੀ ਮਤ। ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪਾਂ, ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਗਿਲਡ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕੰਮ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੱਤ ਦੇ ਇਹ ਰੂਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਹੈ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 2 ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਾਤ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਸਰਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਸਰਵ ਨਿਆਏ ਸੰਗਤ। ਵੀ ਸਰਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜਾ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਨਿਆਏ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਦੀਵਾਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜਦਾਰੀ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਅਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਈਸਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰੂਪ ਯੂਨਾਨ ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਰਬ ਚ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪੂਰਬ ਹਿੱਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਿਨ ਸਵਲੀ ਚਿੰਕ ਮਟਾਈ, ਧੁਰਕੀ ਧਰਕੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧੁਰਕੀ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਅਗਲੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਐਂ ਦਾ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 11,000 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲਦੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। सो तो आप पाएंगे कि मानव इसके बहुत कम सदृश है। ये जो तीन रूप मिथे है ना, मतलब परमात्मा के जो तीन रूप देवत्या के वगैरह रूप इन्होंने मिथे ने, ये मनुख बहुत घट मतलब ये मिलता जो मनुख ने मतलब ये मनुख के दिल च है भी मैं सर्व शक्तिमान होवां, है नहीं भी मैं सब तो तगड़ा होवां, बुद्धिवान होवां वगैरह वगैरह, लेकिन मनुख ये कोई तुल नहीं, ये बराबर नहीं। दरअसल मूर्ति पूजो कि मनुष्य सर्वशक्तिमान अथवा सर्वहितैषी होने से बहुत दूर है। दरअसल मूर्ति पूजक अपने देवताओं में और असाई अपने ईश्वर में मानव आदर्श का सृजन कर रहे थे। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਾਲ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਵਾਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ, ਪਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੱਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਹੀ ਹੁੰਦੇ ਠੁੱਠ ਠੁੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰੂਟ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਂਦਾ फिर नोट कर लो कि मनुष्य सर्वशक्तिमान अथवा सर्वहितैषी होने से बहुत दूर है। दरअसल मूर्ति पूजक अपने देवताओं में और असाई अपने ईश्वर में मानव आदर्श का सृजन कर। आप मूर्ति पूजक के दोनों को पता लग गया कि जब अपने अंतरम में की गहराई से मानव ने उस चीज के बारे में कल्पना की कि वह क्या बनना चाहेगा, तो उसने शक्तिशाली वीर अथवा ईश्वर के आदर्श का सृजन किया, जो संपूर्ण विश्व को अपनी सेवा में लगाने वाला और अधिकतम विकास की सभी संभावनाओं से संपन्न एक नश्वर वीर है जो नहीं मर सकता। ऐसा ही मनुष्य होना चाहिए। और जो अपन पता लगे कि मनुष्य शिक्षा किस लिए लेता, ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਵਾਂ
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ मतलब वो मेरी सेवा के विच लगन। संद औजार प्रकृति वगैरह वगैरह ऐसा ही मनुष्य होना चाहता है। मनुष्य स्वयं अपने में अपना आदर्श धारण किए हुए मनुष्य मनुख हो जा होना चाहता। सो मनुख दा आदर्श मनुष्य दे अंदर ही है। सो इस करके मनुख ने प्रकृति ते इन्हां चीज़ां ते काबू पाउंदियां पाउंदियां जिथे इन्हां नूं अपनी सेवा च लाया, जिथे इन्हां नूं बनाया, उत्थे खुद उन्हें अपने आप नूं भी बनाया। क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वाला मनुख बल्द चलाने वाले मनुख वर्गा नहीं। अज यूनीवर्सिटियां वगैरह वगैरह जिहड़ियां उन्हें अपने ज्ञान लई बनाईयां ते किड्डा ज्ञान बन। सो मनुख खुद अपने च अपना आदर्श धारण के मनुख किहदे वर्गा मनुख खुद अपने आप वर्ग है। जिहो जिहा उन्हें उन्हें बनाना चाहे तो जिहो जिहा तो इस करके मनुखों का एक बार गोरखी ने लिखा सी कि जे चूहा भी सोच सकता तो चूहे का रब चूहे वर्गा। तो मनुख ने अपना रब क्यों जिहा बनाया अपने वर्ग। कई बार देवी चित्र है ना 9-10 वाहवां कि मेरे च इन्नी ताकत हो मैं 9 जना काम कर सका। अपने की कल्पना ने करी ना 9 और इन्नियां वाहवां ना लगदे तो कुड़ता ही लाउण च बड़ी मुश्किल हो। 1000 वाहवां दा की 1000 वाहवां ये है भी मैं 1000 गुना ताकत वध होए बंदा फिर किवें कि नहीं। सो ऐसा ही मनुष्य होना चाहता है। मनुष्य खुद में अपना आदर्श धारण किया। आओ एक उदाहरण लईए, मानव शरीर नूं लईए। शरीर निज में अपना आदर्श धारण किए हुए है। यदि आप स्वास्थ्य विज्ञानी से पूछें कि सामान्य मानव शरीर कैसा होना चाहिए तो वह आपसे यह नहीं कहेगा आप 100 लोगों को ले लीजिए, उनके सीने हृदय आदि को माप लीजिए, भाग देकर औसत संख्या प्राप्त कीजिए और यही सामान्य मापदंड होगा। नहीं, स्वस्थ विशेषज्ञ यह नहीं कहेगा। वह तो ये कहेगा कि मानव शरीर को इतना विकसित किया जाना चाहिए कि उसकी पेशियां हृदय आदि को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक से अधिक मजबूत और सुडौल हो। वह आपको शरीर के अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव डाले बिना प्रत्येक अंग का अधिक से अधिक विकास दिखाने का प्रयास करेगा। यानी वह मानव शरीर के सभी अंगों के अधिक से अधिक सामंजस्यपूर्ण तालमेल पर पूर्ण सडोल विकास को दिखाएगा। स्वस्थ हृदय, स्वस्थ फेफड़े, स्वस्थ पेट, स्वस्थ मसल, मजबूत हड्डियां, हर चीज अपने अपने स्थान पर, हर चीज हरकत के लिए तैयार, हर चीज रक्त वाहकों द्वारा सही ढंग से पोषित और आपके समक्ष तुरंत सुंदर मानव समंस्यपूर्ण सत का रूप प्रकट हो जाएगा जिसे देखना आनंदप्रद है। मतलब रूप पहले रूप लेना फिर तत्त लाएंगे। रूप है कि बाहरी आकार है एडा पेट ही एडा हो जाएगा। कई बंदे एक बंदा संदा देंदे आत्म सिंह रूप दादा ने कि सेठ एडा ही वो अपने टट्टी वाले हाथ ही नहीं सी धो सकता। देखो परना ही थले आए पा के चलाना पहले कोई घोड़ी वजन नहीं चकदी। मतलब कि पेट नाल लग्या सीना उभरिया दौड़े जिवें आपां वेखदे हैं कई जगह हनुमान दे बनाए हुंदे आ या यूनान दी मूर्तियां दे किते तुसीं देखदे हैं। तो इस तरह का जाने जिहड़ा उहदी बाहरी आकृति है उहदा सारा ताल ये है। तो मनुष्य को जिसे देखना आनंद प्रद होता है, जो स्वयं इस बात से आनंद अनुभव करता है कि वह जीवंत है। मनुष्य की शारीरिक शिक्षा को जीवन द्वारा गलत ढंग से इस्तेमाल की गई, अनुवंशिकता द्वारा नष्ट की गई मानव सामग्री, हमारी विकृत मानव सामग्री को ऐसे ही रूप में विकसित करना चाहिए। ऐसी है शरीर की शिक्षा। शरीर की शिक्षा का मूल एक करें। और अब इसी प्रश्न को बौद्ध शिक्षा के क्षेत्र में रखते हैं तत्व के रूप से। रूप का पक्ष तत्व जब किसी आदमी जाता
मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन हमारे छोटे मानव जीवन की परिस्थितियों के अंतर्गत, जबकि हम शाश्वत जीवन जीने से बहुत दूर हैं, सब कुछ जानना संभव नहीं है। सभी विज्ञानों के पूर्ण आकार को एक मस्तक में समाना संभव है। इसके अलावा हमारी सभी समकालीन संस्कृति इस ढंग से बनी है कि एक अपने लिए एक कर्तव्य लेता है तो दूसरा दूसरे, और एक ही समय में समान रूप से अच्छा डॉक्टर, चित्रकार, संगीतज्ञ और टेक्नोलॉजिस्ट होना संभव नहीं है। यह नहीं होता। हमारे समाज में प्रत्येक अच्छे नागरिक की अपनी विशेषता है, जिसमें वह अपने को पूर्ण बनाता है, जिसे वह भली भांति जानता है, जिसमें वह अव्यस्त है और जिसमें वह सहजता पूर्वक काम करता है। तो क्या सामान्य शिक्षित मनुष्य खो जाएगा? क्या सर्व ज्ञान किसी मनुष्य को कभी नहीं दिया जा सकेगा? तो क्या एक इंजीनियर बनेगा, दूसरा एक कृषि विज्ञानी और तीसरा एक दर्जी, और प्रत्येक केवल अपने विशिष्ट व्यवसाय को उसी तरह जानेगा जिस तरह हमारे शरीर में हृदय की कोशिकाएं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को एकीकृत करना संभव नहीं है, क्योंकि वे अपने विभिन्न देशों और विभिन्न अस्तित्वों के साथ मूलतः भिन्न होती है। तैथ्यो की कह रहे हैं कि अज दे समाज दे विच समाजिक तौर पे काम दी समाजी वंड हो गई, क्योंकि इन्ना काम वध गया कि काम दी समाजिक वंड हो गई है। तो इसलिए हर बंदा अपने काम च भी प्रवीण होएगा ते आम बारे भी आम ज्ञान रखेगा। हुण कोई इस तरह हो नहीं सकता कि सारे नूं वो कर सके, नहीं, बेशक नहीं। मानव समाज शर्म विभाजन की दिशा में बढ़ रहा है दिनों दिन। सच्चा मानवीय सही समाज शर्म विभाजन का मार्ग अपनाता है ताकि भौतिक मूल्यों और ज्ञान की यथासंभव विशाल राशि प्राप्त की जा सके। लेकिन यदि कोई भी ज्ञान के इस आम भंडार के प्रति सचेत नहीं है, इस बात के प्रति सचेत नहीं है कि औषधि विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान की उपलब्धियां, रसायन विज्ञान, यांत्रिकी, जीव विज्ञान और शिक्षा शास्त्र वस्तुतः क्या है, यदि हर कोई केवल अपने ही कार्य को जानता हो और कार्य के अन्य क्षेत्रों के सामान्य निष्कर्ष उसके लिए प्राय हो, तो हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो सारे खुद डडुआ बन जाएंगे। शिक्षित आदमी वह है जिसे इस सब का सामान्य और संक्षिप्त ज्ञान होता है, लेकिन जिसके पास अपनी विशेषता भी होती है, जो अपने कार्य को भली भांति जानता है और जो शेष चीजों के बारे में भी कह सकता है कि कोई भी मानवीय चीज मेरे लिए पराई नहीं है। वह आदमी जिसे टेक्नोलॉजी, औषधि विज्ञान, कानून, इतिहास के मूल तत्वों और निष्कर्षों का ज्ञान होता है, वास्तव में शिक्षित आदमी है। वह वस्तुतः सर्वज्ञता के आदर्श की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन हर चीज का केवल सतही ज्ञान प्राप्त करने के ढंग से नहीं। उसके पास अपनी विशेषता होनी चाहिए, अपना काम होना चाहिए, लेकिन साथ ही उसकी हर चीज में दिलचस्पी होनी चाहिए और ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करने की समर्था होनी चाहिए। ऐसा आदमी अपने इर्द गिर्द पेश किए जा रहे पूरे कंसेप्ट को सुनेगा। सभी शब्द उसकी पहुंच के भीतर होते हैं, वे सभी एक में घुल मिलकर एक सामंजस्य बनते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, और साथ ही वह स्वयं भी इसमें एक वाद्य यंत्र बजा रहा होता है और भली भांति बजाता है तथा आम समता में अपना मूल्यवान योगदान करता है, और यह संपूर्ण आम समता समग्रत्व उसकी चेतना उसके हृदय के प्रति बिंबित होती है। ये इस तरह बनाऊंगा। ऐसा होता है बहुत रूप से विकसित मनुष्य, एक शिक्षित मनुष्य। अब सौंदर्य बौद्धिक कलात्मक शिक्षा को ले, जैसे मैंने डॉक्टरों और वकीलों के बारे में जिक्र किया, वैसे ही कलाकारों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। यदि आप प्रतिभावान हैं तो आप चित्रकार बन सकते हैं, लेकिन यदि चित्रकार होते हुए आप कहते हैं कि मैं संगीत बिल्कुल नहीं समझता, इसके दावों को अंगीकार नहीं करता, मेरा काम चित्रकार था, तो आपको लानत है। और यदि आप कहें कि खगोल विज्ञान से मेरा क्या काम, मेरा अब भी विश्वास है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो भी आपको वैसे ही लानत है।
किसी को भी अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। लानत है तो मतलब ये साढ़े गुरु सन जेडे भी लानत पा सकते थे नहीं। तो सबको सभी विज्ञानों और कलाओं के मूल तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे आप मोची हो या रसायन विज्ञान के प्रोफेसर। यदि आपकी आत्मा में किसी कला के लिए स्थान नहीं है तो इसका मतलब है कि आप काणे और बहरे की भांति अपाज है। तो आप काणे भी नहीं हैं जब वो सीखने, क्योंकि आदमी की शिक्षा वस्तुतः इसमें है कि वह सब कुछ जिसमें मानव जाति अपने इतिहास और संस्कृति का निर्माण करती है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी या सांत्वनाप्रद अथवा जीवन में आनंद प्रदान करने वाली कृतियों में प्रतिबिंबित होता है, यह सब कुछ प्रत्येक आदमी की पहुंच के भीतर हो, पर साथ ही उसके पास कोई विशेषता भी हो, विशेषज्ञता भी हो। यह जरूरी नहीं कि उसके पास एक ही विशेषज्ञता हो। कुछ ऐसे महान प्रतिभाशाली लोग भी हैं जिनके पास एकाधिक प्रतिभाएं हो सकती हैं। उदाहरण तो हमारे महान संगीतकार बोरोदीन एक वैज्ञानिक रसायनविज्ञ भी थे। ऐसी चीजें होती हैं और वे मानव जाति को खुशी ही प्रदान करती हैं, लेकिन किसी भी हालत में विशेषीकरण को सामान्य शिक्षा का और सामान्य शिक्षा को विशेषज्ञता का हनन नहीं करना चाहिए, जिससे एक सबसे घृणित परिघटना पलिवग्रहता उत्पन्न होती है। सब कुछ अयाशी के लिए करने वाले, जेडे अयाशी दे लिए करने वाले भी मैं तो मौज मेले लिए भी या करना, सब कुछ अयाशी के लिए करने वाले, फूलों को नष्ट करने वाले और मलाई उतार कर चट करने वाले पलवग्राही व्यक्ति का कोई सुधार नहीं होना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी एक क्षेत्र में मनुष्य स्वयं सर्जक हो, वह इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रचनात्मक प्रतिभाओं में के पूर्ण उपयोग के साथ गहराई से काम करे और अपनी पूरी शक्ति से मानव जाति के लिए वास्तव महत्व रखने वाली वस्तुओं का निर्माण करे। अब हम नीति शास्त्र नैतिकता की चर्चा करेंगे। अभी जब हम मनुष्य के बौद्धिक तकनीकी और कलात्मक विकास के बारे में बात कर रहे थे, तो हम अपने से यह पूछ सकते हैं, जरा ठहर जाइए, आप कहते हैं कि सारी मानव जाति को प्रत्येक आदमी की सेवा में होना चाहिए, कि खानों, खेतों, बागों, मिलों, कारखानों, कलाकारों के स्टूडियो और सभी वर्कशॉपों, अकादमियों, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं से उत्पादित सब कुछ हर आदमी की पहुंच के भीतर होना चाहिए, ताकि हमसे प्रत्येक अपनी आस्तीने हमने चढ़ाकर अपनी जगह पर 8 घंटे काम करने के बाद मानव संस्कृति के मंदिर जा सके और वहां न केवल अपने हाथों के कार्यों बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों के कार्यों का आनंद ले सके। लेकिन क्या बुर्जुआ संसार में ऐसा होता है? नहीं। तथाकथित आम लोगों का अधिकांश हिस्सा जो श्रम का मुख्य बोझ वहन करता है, इस संस्कृति से बिल्कुल कटा हुआ है, इसका उपयोग करने में पूर्ण असमर्थ है। ये है बुर्जुआ नैतिकता। बुर्जुआ नैतिकता ये है ना कि लखा लोग जो पैदा करते हो कोई अंश ना पा सकन, ना खाण ली ना आनंद लैन ली, कला संगीत वगैरह। और इसके अलावा हम पाते हैं कि लगभग सर्वत्र विशेषीकरण इस हद तक पहुंच गया है कि इसने मानव रूप को विलुप्त कर दिया है। लोग इतनी पूरी तरह अपने विशेष क्षेत्र में घुस गए हैं कि जर्मनी जैसे अपेक्षाकृत प्रगतिशील देश में विशेषीकरण सच्चे आदमी को अपाज बना रहा है, लेकिन साथ ही नठल्लेपन की रोटियां तोड़ने वाले परजीवियों का बड़ा समूह भी है, जो इस संबंध में मानव रूप को विलुप्त करते हैं कि वे केवल अयाशी करते हैं और कुछ भी सर्जन नहीं करते, जिससे उसकी आत्मा की रचनात्मक शक्ति क्षीण हो जाती है। वे उन परजीवियों की तरह है जो धीरे धीरे अपने पैरों और पंखों को खो देते हैं और दूसरे जीवों द्वारा पोषित एक कीड़े के थैले के अलावा और कुछ नहीं रह जाते। यह एक विशाल विरूपण है और चाहे इसे कितने ही चमकीले कलात्मक अलंकरणों में क्यों न सजाया जाए, फिर भी यह विरूपण ही रहेगा।
यह संपूर्ण जीवन को जहरीला बना देता है। यही कारण है कि हमारी संकीर्ण संस्कृति के लगभग संपूर्ण चेहरे पर हमें सच्चे ढंग से शिक्षित आदमी नहीं दिखाई देता। जब मनुष्य ने नैतिक संबंध में ईश्वर के रूप में आदर्श खींचा तो उसने कहा कि ईश्वर सर्वहितैषी, ये अनैतिकता कि वह प्रेम पूर्ण है, कि उसके प्रेम की प्रीति में संपूर्ण मानव जाति आ जाती है। संपूर्ण मानव जाति नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। जब अंजील कहता है तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, सुनिए कि स्वर्ग में पिता क्या कहता है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। उसकी स्थिति को यह बात हानि नहीं पहुंचाती कि वह निर्णय दिवस पर लोगों का फैसला करने वाला डरावना निर्णायक होगा और पश्चातापी पापियों को ऐसी जांचना शाश्वत अग्नि में भेजेगा जिसमें मानवीय शक्ति में भेजने का समर्थ नहीं। अत मनुष्य की कल्पना में ईश्वर महान प्रेम और महान क्रोध का एक सच है। प्रेम अपने अंतिम रूप में केवल तभी विजयी हो सकता है जब क्रोध के लिए कोई चीज नहीं रहेगी। प्रेम तो उदय सच्चा रह सकता ना। हुण धर्म वालियां दा परमात्मा वालियां दा किवें है भी ਉਹ महान प्रेमी भी है महान क्रोधी भी है, पर दंड भी दिंदा भी जद भुल करदा बंदा आला भी जब क्रोध प्रेम अंतिम रूप च केवल उदों ही विजयी हो सकता जब क्रोध भी उहदे च कोई जगह नहीं रहे, जदों कोई ब्रूपता नहीं रहेगी, जब कोई द्वेष नहीं रहेगा। लेकिन जब तक वे हैं तब तक उनका अनुमूलन किया जाना चाहिए। इस तरह एक दिन अपनी विजय में मनुष्य जब उसे संघर्ष करने को बिल्कुल नहीं रह जाएगा, संभव शुद्ध आनंद की मूर्ति होगा। विजय से चेहरा चमकता है, लेकिन जब तक विजय नहीं होती तब तक उसे सरसराते तीर निशाने पर संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाले दानव पर छोड़ते रहना चाहिए। तब तक मनुष्य को जोड़ा बना रहना चाहिए। किस लिए? मानव रूप के लिए, वस्तुतः उसके निर्माण के लिए, वस्तुतः उसकी शिक्षा के लिए। और क्रांति, समाजवादी क्रांति स्कूली और बाहर स्कूली शिक्षा में एक क्रांति है। यह क्रांति मानव की शिक्षा में एक क्रांति है, केवल आज अपाज और इसलिए अशिक्षित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों के युवाजनों के प्रति भी महान प्रेम की क्रांति है, जिन्हें हम इसलिए स्नेह करते हैं कि उनमें हम वह मानव देखते हैं जैसा कि हम बनना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हम स्वयं वैसा नहीं बन सकते। अपने को उत्कृष्ट मानव के रूप में अनुभव करने का यह अभाव आदर्श के लिए भयानक लालसा और उन सभी बाधाओं के विरुद्ध क्रोध में बदल जाता है जो इस आदर्श की सिद्धि में मानव जाति के मार्ग में आती हैं। इस दृष्टि से क्रांति उस मानव का विद्रोह है जो अपने को व्यष्टि के तौर पर नहीं, अपने आप को नहीं बल्कि समष्टि समूह के तौर पर शिक्षित करता है। क्योंकि यदि वास्तविक समाज की स्थापना नहीं की गई है तो मनुष्य को नैतिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। केवल एक न्याय संगत समाज में ही जिसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तुतः इसलिए नहीं काम करता है कि कोई अन्य उसके श्रम का इस्तेमाल करे, बल्कि आम कोष में उस आम मंदिर में अपना योगदान करने के लिए काम करता है जिसमें वह स्वयं रहता है और स्वयं महान तथा सुंदर की स्तुति करता है। केवल ऐसे ही समाज में वास्तव में शिक्षित मनुष्य संभव है। केवल वही वह अपना हृदय खोल सकता है और मोपाशा के शब्दों को दराता बंद कर सकता है कि आदमी हमेशा अकेला होता है और उसका सर्वोत्तम मित्र भी उसके लिए पहेली होता है। लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रति यह संदेह का बीज समाज की परिस्थितियां निजी संपत्ति के जोर से बोया गया, उसे पिघलना चाहिए। भाईचारे के वातावरण में, प्रेम और पारस्परिक सहायता के वातावरण में दिलों को मिलकर एक हो जाना चाहिए तथा वस्तुतः इसी प्रेम की खातिर हर समय अन्याय रूपी दानव को देखते ही जलते क्रोध से भर जाना चाहिए, उसे प्रति से साफ कर देना चाहिए। इस तरह यह स्पष्ट है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उसे वर्तमान समाज द्वारा विकृत मनुष्य से शरीर सौंदर्य से संपन्न एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए जो उन अंगों की उपस्थिति द्वारा आदेश सभी चीजों को पूरा करने में समर्थ हो जिन्हें हम अभी दबे हुए पाते हैं, न कि विकसित।
उसे अपने सभी अंगों को ऐसे सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करना चाहिए कि वे एक दूसरे को बाधा न पहुंच जाए और समाज को एक समष्टि के रूप में अपने सभी अंगों को उस ढंग से विकसित करना चाहिए कि वे एक दूसरे को बाधा न पहुंचाएं। जिस तरह एक शिक्षित व्यक्ति के शरीर में प्रत्येक कोशिका सभी कोशिकाओं के लिए रहती है और काम करती है तथा आनंद अनुभूति में सभी मिलकर एक हो जाते हैं, उसी तरह समाज में हर चीज को आम उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम रचनात्मक प्रयास करना चाहिए ताकि सब मिलकर एक सामंजस्य बन जाए। और सबका जो सामंजस्य जिसे हम संस्कृति कहते हैं शिक्षा है, तो सारे का तालमेल जिन्हों ਅਸੀਂ संस्कृति कहने हैं शिक्षा है। स्कूल को इस शिक्षा की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकता है? क्या वह आदमी को इस तरह की पूर्ण शिक्षा दे सकता है? नहीं, इसे किसी निश्चित अवधि में नहीं प्राप्त किया जा सकता। ऐसी शिक्षा की प्रक्रिया पालने से कब्र तक जारी रहती है, बूढ़े तो लेके कब्र तक जारी रहती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक सीखता रहता है और कोई भी ऐसी अवधि नहीं होती जिसमें उसने कुछ न सीखा हो। स्वयं जीवन ही इस तरह बना है कि मनुष्य के लिए सीखना जरूरी है, केवल इसलिए नहीं कि सभी विज्ञान और कलाएं निरंतर विकसित हो रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि जीवन हर महीने हमारे इर्द गिर्द नए नए कार्य प्रस्तुत कर रहा है। हमें अपने आप को कोई ना कोई नई चीज के अनुकूल बनाना पड़ता है। एक सुप्रसिद्ध जापानी कलाकार ने कहा कि 70 की आयु पर पहुंचकर ही उसकी समझ में आया कि चित्रकला क्या है। केवल 70 की आयु पर पहुंचकर ही वह अपने को एक सच्चा कलाकार महसूस कर सका और प्रसंगवश यह एक सच्चा महान कलाकार था जो तब तक काफी उत्कृष्ट चित्र बना चुका था, लेकिन 70 की आयु में तो उसने अपनी रुचि से वस्तु चमत्कार कर दिया और लोगों को विविध होकर उसे एक महान चित्रकार के रूप में स्वीकार करना पड़ा। न केवल हमें सब समय सीखना चाहिए बल्कि साथ ही निरंतर सतर्क नमनीय भी होना चाहिए, नम्र भी होना चाहिए। नए प्रभावों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई शिक्षा के ये अर्थ लगाता है कि 22 साल की आयु में मनुष्य हमेशा के लिए और अंतिम रूप से ढल जाता है, तो यह कितना भयानक निष्कर्ष नहीं। उसे निरंतर अपने को नए के अनुकूल डालते रहना चाहिए। उसे हर नए सफर में दिलचस्पी होनी चाहिए, हर नई अक्षता, हर नई खोज को समझने में समर्थ होना चाहिए। आप जानते हैं कि इस तरह के बूढ़े लोग हैं जिन्हें आप चाहे जितना नूतन और उत्कृष्ट दिखाए, फिर भी वे कहेंगे नहीं, हमारे जमाने में चीजें बेहतर थी, हमारे जमाने में सब कुछ बेहतर था, तब बिल्कुल भिन्न तरह के लोग थे। आप वैसे वीर नहीं हैं। वस्तुतः यह बकवास है। यह केवल उस काल के जीवन के रूपों से चिपके रहना है जब स्वयं मनुष्य का निर्माण हुआ था। बच्चा होना एक महान कला है। हमारे कृष्ण कही नहीं बरते ते उन्हें भी बरता है अपने दूजे की जरा मीने वाला किड़ा सी तस्कीन है। बच्चा होना एक महान कला है, लेकिन स्वयं जीवन के लगभग हर मनुष्य में बच्चा होने की योग्यता होती है। सिर्फ उसकी खुशी में बाधा न पहुंचाएं। जीवन में खुश होने की उसकी इस मेधावी योग्यता में बाधा न डालें, इसे नष्ट न करें। बाद में जब हम कर्म युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो जीवन की महान कला सबसे महत्वपूर्ण कला सिद्ध होती है। जी हाँ, उत्तम व्यवहार होना एक महान कला है और संभवतः विवेक से भरे व्यवहार में मानव जाति जितनी पूर्णता से अभिव्यक्त होती है उतनी और किसी चीज में नहीं। उस व्यवहार में जिसका हृदय हर नूतन चीज के लिए खुला रहता है, जो नई पीढ़ी का अभिनंदन करता है, जो अपना अनुभव उसे हस्तांतरित करता है, जो कह सकता है कि उसका जीवन वस्तुतः प्रेम के लोक में गुजरा है और फिर यह जीवन अपने शांत तथा भव्य अंत की ओर जाता है।
जब अपने दिनों से संतृप्त होकर मनुष्य कब्र से परे जीवन के बारे में चिंता न करते हुए चेतना के साथ मरता है कि उसने जो कुछ प्राप्त किया है वह अब भावी पीढ़ियों के हाथों में संतृप्त हो गया है। यह सब सीखना जरूरी है। जब तक आदमी अपने को जवान देखने का आदी होता है तब तक उसकी दूसरी अवस्था शुरू भी हो चुकी होती है, और यदि वह उस चीज को देखने को से अपना चेहरा चुराता है जो दूसरों के लिए दुर्भाग्य और विष का है तो उसका पतन होगा। हमें हमेशा सीखना चाहिए। तात्पर्य कि शिक्षा केवल स्कूल का कार्य नहीं है। स्कूल तो सिर्फ शिक्षा की कुंजियां देता है। स्कूल को मनुष्य को काम करने की शिक्षा देनी चाहिए। इसे दुनिया के रहस्य के अध्ययन की कुछ निश्चित विधियों की आधारशिला रखनी चाहिए। इसे इस ढंग से पहली प्रेरणा देनी चाहिए और उसके बाद जीवन आगे बढ़ता जाएगा और कोई भी यह पूर्वानुमान नहीं कर सकता कि मनुष्य का पथ कैसा होगा। बाल स्कूली शिक्षा संपूर्ण जीवन है। मनुष्य को अपने को संपूर्ण जीवन शिक्षित करते रहना चाहिए, क्योंकि आदर्श दूर स्थित है और ऐसा कोई क्षण नहीं होना चाहिए जिसे मनुष्य बिना किसी उपलब्धियों के बताए। यदि ऐसा क्षण है तो उसे अपने जीवन से चुराया होगा। बेशक सोना और आराम करना जरूरी है, लेकिन इतना ही सोना और आराम करना जरूरी है कि बाद में नई शक्ति प्राप्त करके वह अपने खोए समय को पूरा करने में समर्थ हो सके। एक कहावत है, जो सोता है सो पाप नहीं करता। नहीं, वह आदमी जो अधिक सोता है भयानक पाप करता है। वह समय गवाता है, समय नष्ट करता है, और जो समय नष्ट करता है वह खुद अपने को नष्ट कर रहा होता है, अपने में मानव रूप को नष्ट कर रहा होता है, समाज को और स्वयं मानवता के आदर्श को नष्ट कर रहा होता है। जब क्लर्कों की एक या दूसरी मंडली एकत्र होती है और कहती है आइए समय नष्ट करने के लिए ताश खेलें, तो वे अपने काम का वर्णन बिल्कुल सही ढंग से कर रहे होते हैं। वे चार हत्यारे हैं जो एक दूसरे की हत्या करने में लगे हुए हैं और सामाजिक रूप में उपयोगी समय को नष्ट कर रहे हैं। उनका जीवन इतना कमीना और क्षुद्र होता है कि केवल यही तरी पर कोई क्लर्क या रजिस्टर कीपर महसूस करता है कि उसके रास्ते से भाग्य के कप्तान ग्रैंड स्लैम जीतने की कुछ संभावना है। यह उसके लिए बड़ी घटना है। उसके जीवन में और कोई घटनाएं नहीं हैं। अपने को शिक्षित करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अपना समय नहीं नष्ट करना चाहिए। उसके लिए सभी घटनाएं, छोटी से छोटी घटनाएं भी एक प्रश्न उठाती हैं जिसका उत्तर पाने के लिए उसे पुस्तकों का गहन अध्ययन करना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए और अन्वेषित चीज को आत्मसात करना चाहिए। और आत्मसात करने का क्या अर्थ है? किसी चीज को अपना अभिन्न अंग बनाना, उसे अपनी नीतियों का एक तत्व बनाना। मनुष्य की सच्ची संपदा वह है जिसे उसने आत्मसात कर लिया हो। ऐसे शौकिया लोग हैं जिनके पास अपनी चित्र गैलरी, अपने थिएटर हैं, लेकिन उन्होंने इनमें से किसी भी चीज को आत्मसात नहीं किया है और इसलिए इनके मालिक वे नहीं बल्कि निर्धन कलाकार हैं जो गैलरी आता है, उस चित्र की पूरी समझदारी के साथ प्रशंसा करता है। वह उसका व्यक्ति से 1000 गुना अधिक मालिक है जिसने 1000 रूबल अदा किए, लेकिन चित्र को आत्मसात करने, इसे अपने खुशी का स्रोत बनाने के लिए कुछ नहीं किया। स्कूल इसकी संभावना प्रदान करता है। और बात स्कूली शिक्षा क्या है जिसके लिए आप यहाँ एकत्र हुए हैं? आप इसलिए यहाँ एकत्र हुए हैं ताकि स्कूल के बाद पढ़ा सकें और सीख सकें। बाल स्कूली शिक्षा ऐसे सांस्कृतिक केंद्रों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, कोर्सों, जिम्नास्टिकों आदि की स्थापना और प्रयोग का मामला है जो आदमी को अपने जीवन को केवल समय गुजारने की चीज, केवल एक सरल प्रक्रिया न बनने देने में सहायता कर सके। इन सबको आम लोगों की पहुंच के भीतर बना दीजिए। इनमें आम लोगों को खींचिए ताकि वे पढ़ सकें और सिखा सकें कि कैसे शिक्षा प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि वे आम निधि में अपनी आत्मा, अपनी सभी मूल्यवान चीजों को दे सकें। रूस में ये कार्य विशेष रूप में तीव्र महत्व ग्रहण कर लेता है। यह कहना एक बात है,
जीवन दैनिक जीवन का सागर है, हमें तैरना जानना चाहिए और जीवन के अभीष्ट तटों पर पहुंचने में समर्थ होना चाहिए। लेकिन यह कहना और बात है, लोग डूब रहे हैं, हमें तैरना सीखना चाहिए ताकि हम उन्हें बचा सकें। रूस में कोई सच्चे स्कूल नहीं है, कोई भी सच्चे स्कूल से नहीं गुजरा है। हमारे स्कूल लोगों को अपंग बना देते हैं, जो आजकल स्कूल है, उन्हें एक दूसरे से अलग थलग कर देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जो भुला दिया जाता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो बंद आंखों के साथ चलते हैं और यह नहीं जानते कि वे अंधे हैं, और जब वे अपनी आंखें खोलेगा तो काश, सूरज और पृथ्वी देखेंगे। हमारे लिए बात स्कूली शिक्षा अनेक शिक्षक जानी वैज्ञानिक और कलात्मक मूल्यों के प्रचार तथा ऐसे लोगों के सांस्कृतिक प्रबोधन का एक विशेष साधन है जिन्हें अंधेरे तय खानों में रखा गया है, जिन्हें जमीन के नीचे शशुंद्र के बिलों में रखा गया, जिन्हें अपने पंख फैलाने का कोई मौका नहीं दिया गया है ताकि वे अपनी विजय का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ हो सकें। राजनीतिक रूप में वे जीत चुके हैं, आर्थिक रूप से वे अर्थव्यवस्था के सभी केंद्रों के अपने शक्तिशाली हाथों में ले रहे हैं। लेकिन यदि उनके पास ज्ञान नहीं है तो वे कैसे शासन करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे करेंगे? वे स्कूलों में ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन यह काम अत्यंत मंत्र गति से हो रहा है। हमें अभी भी ज्ञान प्रदान करना चाहिए और केवल उदीयमान पीढ़ी को ही नहीं, जिससे हम आशा करते हैं कि नया इंसान विकसित करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी जिन्होंने अभी विजय प्राप्त की है, उन्हें समाज को बदलने का अवसर दीजिए, उन्हें ज्ञान दीजिए। जो भौतिक भूख हम अब महसूस करते हैं वह उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि आत्मिक भूख, अर्थात सांस्कृतिक अर्थ में जनता का कुपोषण। वह कितनी गलतियां कर रही हैं, कितने ऐसे बदमाशों को आगे बढ़ाती हैं जो अपनी घृणित धूर्तता से मजदूरों और किसानों के देह को बदनाम करते हैं। लेकिन जनता क्या करे जब उनके पास ज्ञान ही नहीं है, जब वह आगे आने वाले सभी लोगों पर फूट पड़ने के लिए विवश है। वह क्या करे जब बुद्धिजीवियों ने अपने पूर्वाग्रह के कारण प्रारंभिक दिनों में उनकी राजकीय सत्ता का तोड़ फोड़ किया, कदम कदम पर गलतियां की जा रही हैं, लेकिन जनता को अपने में विश्वास है, उनका सच्चा और दृढ़ विश्वास है कि उसे अनिवार्यत विजयी होना है। उनके पास ज्ञान की लालसा है, इसलिए और भी देख के उसने पुरानी संस्कृति के भवन को गिरा दिया है। वह ध्वंसावेशों के बीच रह रही है तथा एक नए भवन की आधारशिला रख रही है जो मैंने निकलता थी। यह जानने के लिए क्या गिराया जाए और कैसे गिराया जाए, नए भवन की आधारशिला सही ढंग से रखने के लिए विपुल ज्ञान की जरूरत होती है। और हमें भय है कि कहीं अंधी जनता, हालांकि इसने अपनी शक्ति महसूस कर ली है और राजनीतिक रूप से मालिक बन गई है, आर्थिक व्यवस्था में जारों तथा विजातों से विरासत में प्राप्त बुराई से मुक्त होने में असमर्थ न हो जाए। इसीलिए यह मामला इतने तीव्र महत्व के साथ प्रस्तुत हुआ है और आपका कार्य वह सब कुछ पूरा करना है जो सामान्यतः स्कूल द्वारा पूरा किया जाता है, यानी साक्षरता प्रदान करना। लेकिन आम स्कूल रहे के अंदर भी साक्षरता, पढ़ना लिखना चाहिए, लेकिन साथ ही यह कभी ना भूलें कि आदर्श इसमें नहीं है, ना ही आदमी को एक या दूसरे व्यवसाय में प्रंगत बनाने में है, ना ये अभी वो कोई कितना शक्ल है, ना ही आदमी को एक या दूसरे व्यवसाय में प्रंगत बनाने में है, ना ही साक्षर बनाने में, बल्कि उसे मानवता के लिए एक योद्धा बनाने में है। मतलब एक प्रतिबद्ध मनुष्य भी बनना। प्रतिबद्धता नहीं पढ़ाई तो है, पूंजीवाद पढ़ाई हो रही पर प्रतिबद्ध नहीं। उन्होंने विज्ञान पढ़ा दिता जाता, अगे तोते तो पर्ची भी वही चुकाऊंगा, उसके बारे लड़ता नहीं, बल्कि उसे मानवता के लिए एक योद्धा बनाने में। और यह आदमी केवल तभी बन सकता है जब वह जानता हो कि दुनिया क्या है, यह कैसे अस्तित्व में आई, पूंजीवादी प्रणाली से वर्तमान स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, वैज्ञानिक, कलात्मक तथा आर्थिक कार्यभार से उसका क्या संबंध है, और किसी अवान या सत्यपान के रूप में इस दुनिया में मेरा क्या स्थान है तथा मुझे क्या करना चाहिए। दुनिया में अभूतपूर्व महान क्रांति की अवधि में उसे वह सब कुछ करने की योग्यता प्रदान कीजिए जो उसे करना चाहिए। यही कारण है कि मजदूरों और किसानों की हमारी सरकार बस स्कूली शिक्षा को सर्वप्रथम विशाल महत्व प्रदान किए बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि समय कोई भी संसाधन इसके लिए काफी नहीं हो सकता तथा यही कारण है कि मजदूरों और किसानों की सरकार और स्कूली शिक्षा के ध्येय की सहायता करने में कोई कोर कसर काम कर सकते हैं। लेकिन यह
करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इस ढंग से प्रकाशवाहक के रूप में काम करने में समर्थ लोगों की संख्या बड़ी नहीं है। सबसे पहले हमें प्राध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, संचालकों को प्रशिक्षित करना चाहिए और यह सर्वोच्च प्रभावता प्राप्त कार्य होना चाहिए। तब तक हम जनता के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए। तो भी मुझे कहना चाहिए कि जब बात पूरी शिक्षा आम लोगों को एक नए सत्र पर उठाने वाला शक्तिशाली अतोलक है, तो यह उन लोगों के रूपांतरण के लिए भी कोई कम शक्तिशाली अतोलक नहीं है जो अपने को शिक्षित मानते हैं। हम शिक्षित लोगों से इस क्षेत्र से काम लेंगे, यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो स्वयं यह नहीं करना चाहते, हम उन लोगों को ले आएंगे जो हमें सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा का प्रयोग जनता की सेवा में कर सकें। जो भी ज्ञान उनके पास है उसे उन्हें जनता को दे देना चाहिए, और ऐसा करने से वे निर्धन नहीं हो जाएंगे बल्कि उल्टे और समृद्ध होंगे। वयस्क लोगों के साथ काम करना स्कूल में काम करने की तरह नहीं है। हालांकि हम स्कूल में भी मांग करते हैं कि अध्यापक विद्यार्थी का सहयोगी बने, लेकिन वहाँ आखिरकार बात अप्रौढ़ विद्यार्थी और प्रौढ़ अध्यापक की है। यहाँ बात ऐसे आदमी की है जो शर्म से कटा हुआ है, जिसे कोई वास्तविक कठिनाइयाँ नहीं मालूम है, जिसके पास कोई सामाजिक सहज बोध नहीं है, सर्जनशील आत्मा की कोई क्रांतिकारी लहर नहीं है। वह उन मजदूरों और किसानों का शिक्षार्थी होगा जिसके पास वह आता है और जिन्हें वह पढ़ाना शुरू करता है। जी हाँ, शिक्षा देते उसे सीखना पड़ेगा। उसके पास आते ही उसे खुशी से कांपते हाथों से इस वीर जनता को भौतिक ज्ञान, रसायन विज्ञान आदि के बारे में अपने संपूर्ण ज्ञान को हस्तांतरित करना चाहिए और उसे मालूम होना चाहिए कि सरल सहयोग में जनता से उसे जो सहयोग मिलेगा उससे उसे नई शक्ति प्राप्त होगी और उससे बुद्धिजीवी दमता दयनीय जीवन जी रहा है। साडा बुद्धिजीवी यदि वह नरकुंशता के जो उसे दासों के भावी निरीक्षकों के रूप में डालती है, क्या टुकार से एक सच्चा नागरिक बन सकता है और अपने को उन सभी भावनाओं से अनुप्राणित कर सकता है जो शर्मजीवी जनता के सर्वोत्तम लोगों से भरी होती है। तो केवल इस शर्मजीवी जनता के साथ सहयोग के माध्यम से ही वह सच्चा नागरिक बन सकेगा। इसका उपयोग करते हुए हम जनता की विशाल माला को, जो व्यक्ति की मुसीबतों का बोझ वहन करते हुए अपने भविष्य की और कष्टपूर्ण ढंग से चल रही हैं, उन विज्ञानों और उस कला की माला के साथ परोने में समर्थ हो गए जो बहुत मूल्यवान है और जिन्हें अपनी अपेक्षाकृत छोटी दराहों को इस गंदगी और अंधेरी नदी में मिला देना चाहिए। यह संगम कल्याणप्रद होगा, क्योंकि यह गंदगी और अंधेरी की शक्तिशाली नदी वह मध्यम है जो समकालीन संस्कृति की सभी इच्छाइयों को विकसित और दीप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। क्योंकि इससे कौन इनकार कर सकता है कि विद्युत का विज्ञान और कला बड़े मूल्यवान है। जनता से संपर्क से यह सब नए प्रकाश से दीप्त हो उठेगा, जड़ से जीवित वे रूपांतरित हो जाएगा। यह सब सच्ची रचनात्मकता की लौ से जल उठेगा और साथ ही जनता की विशाल किंतु अब तक अंधेरी आत्मा, अंधेरी किंतु जलती, अंधेरी किंतु समृद्ध आत्मा की आंतरिक गहराइयां भी प्रकाशमान हो उठेंगी। हम उन लोगों का आह्वान करते हैं जो ज्ञानियों को ज्ञान देना और शर्मजीवी जनता को की शक्ति से मुग्ध होना जानते हैं। दोनों के सम्मेलन से धीरे धीरे शिक्षित मानव अद्भुत बुद्धि संपन्न योद्धा का निर्माण शुरू होगा, जो अपनी सारी शक्तियों को पृथ्वी और बाद में मानव ईश्वर उस प्राणी को रूपांतर करने में लगा देगा जिसके लिए संभव दुनिया बनाई गई थी, जो प्रकृति का राजा होगा, लेकिन एक ऐसा राजा जिसके बारे में हम सपन देखते हैं जब हम कहते हैं कि एक शिक्षित मानव हमारा आदर्श ईश्वर सदृश मानव का रूप है, जिसके संबंध में हम अभी मात्र कच्चे माल केवल आकार दिए जाने वाले धातु पिंड हैं, लेकिन ऐसे जीवित धातु पिंड हैं जो निज में अपना आदर्श धारण किए हुए हैं। वर्तमान समय, द्रप्त समय, तप्त समय, क्रांतिकारी समय जो विशाल डग भरने में समर्थ है, में हमें सबको मिलकर, चाहे हमारा शैक्षिक सत्र कुछ भी क्यों ना हो, सबको मिलकर इस ज्वलयमान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है। वस्तुओं को की ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी कोर्स का शुभारंभ जिसमें मजदूर और किसानों की सरकार जो ज्ञान के ज्वलंत विश्वास और लालसा की वाक है, जिनसे रुचि लोग ओतप्रोत हैं और जिन्हें वह सरकार आप में भी
अनुप्राणित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे कोर्सों का शुभारंभ एक महान घटना है साथियों। पिछले दिनों में जब सोवियत सत्ता जीते प्राप्त करने लगी, जब यह दुष्पना पूर्ण चेतना के किसी भी समय हम फिसल जा सकते हैं कि किसी भी समय आंतरिक षड्यंत्रकारियों की तलवार अथवा में शत्रुता का दानव इस नवजात शिशु यानी समाजवाद का गला घोंट सकते हैं, जो अपने विशाल अखिल रूसी पालने में लेटा हुआ है। अब जबकि वह दोषपूर्ण चेतना कुछ हद तक गुजर गई है, जब हम खुशी की सांस ले सकते हैं, जब हम देखते हैं कि कैसे साम्राज्यवाद बुल्गारिया से शुरू करके सर्वत्र ढह रहा है, जब हम महसूस करते हैं कि वह समय उतना दूर नहीं जब हमारी विजय कमोबेश पूर्ण हो जाएगी, जब हमारे करोड़ों भाई जो अब तक हमसे पछड़ गए थे हमसे आकर मिल रहे हैं। इन दिनों में पीटर्सबर्ग के विभिन्न इलाकों की यात्रा करते हुए सभी तरह के कोर्सों और सभी तरह के क्लबों के उद्घाटन के अवसरों पर बोलते हुए मैं अपने हृदय में अपार खुशी अनुभव करता हूँ। मैं इतने लोगों को काम करने के लिए तैयार पाता हूँ, और केवल निम्नतम सत्र पर ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवियों के बीच भी, जिनकी पंक्तों से अनेक लोग बड़ी तत्परता पूर्वक हमारे पास आ रहे हैं और केवल यही पूछते हैं क्या जो कुछ हम जानते हैं वह किसी काम का है। यदि यह जरूरी है तो ले लीजिए। और वे अपने साथ मूल्यवान ज्ञान लाते हैं जिसके स्तर का आभास मुझे भी यानी उस आदमी को जो पुराने अर्थ में शिक्षित प्रतीत होता नहीं था और जिसे वे अब हमारी सेवा में अर्पित कर रहे हैं। रूस अपने लाल पीटर्सबर्ग का अनुसरण करते हुए विशाल आत्मिक क्षमताओं से परिपूर्ण है। हमें अपने नवनिर्माण के लिए विशाल क्षमताएं उपलब्ध हैं, और इन क्षमताओं के होते हुए यह भय कपूर हो जाता है कि हम बहुत अज्ञानी, बहुत छोटे, बहुत अप्रोड हैं कि यूरोपीय परिवार में सबसे छोटा भाई हैं। एक ऐसा छोटा भाई जिसने ऐसी समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है जो बड़े भाई के बलबूते के भी बड़े प्रतीत होती है। हमें धैर्य की जरूरत है, लेकिन ऐसा धैर्य नहीं जो विलंबकारी हो, बल्कि ऐसा धैर्य जो कार्य की पूर्ति के लिए कोई कोर कसर नहीं उठा रखता, जो पूरी संरचना के तुरंत ही खड़ी ना होने पर निराश नहीं हो जाता। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं, सब कुछ पूरी शक्ति से, सब कुछ अधिकतम प्रयास से, और हम नए मानव का सृजन कर देंगे। सारी दुनिया की नज़रें हम पर टिकी हुई हैं। कुछ लोगों ने हमें देखा और गुप्त ईर्ष्यापूर्ण खुशी से कहा देखो वे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, मगर फिर खड़े होते हैं। अब वे देखते हैं कि हम जमीन में गहरी जड़ा जमा रहे हैं, कि हम अपनी 12 वर्षगांठ बनाने वाले हैं, और यदि अभी भी निबोधित वृक्ष पर सुवर्ण में फल नहीं लगे हैं तो पहली कोंपलें निकली ही आई हैं, पहली कलियां दिखाई देने ही लगी हैं। इस वृक्ष की एक कोंपल, एक भावी कली आपके कोर्स हैं जिनका मैं शिक्षा जनता में सारी बात करता हूँ। धन्यवाद।